We were talking about goals. Now, so contents of this PPT is what is a goal, then why goal is important, then kinds of goals, then characteristics of goal, and types of goals, and achieving goals. So what's a goal? An observable and measurable outcome to be achieved within a fixed time frame, the end result towards which your efforts are directed. That is called a goal. If in a nutshell we want to say what's a goal, it means we can say that any worthwhile dream is a goal which you want to achieve in your life, right? Why goal is important? Goal is important because first thing is it keeps you focused. When you have goal, you are always focused because you have to achieve it. I tell you a small story. जब राजा जनक का नाम आपने सुना होगा, सीता's father, उनके पास एक साधु गया. A sadhu went to him and he said, because Janak was called Raj Rishi, Janak जी को राज ऋषि कहा जाता है, that he was a king and a rishi also. So that sadhu asked him, how can it be? How can you be a king and a sadhu also? How can you concentrate on your daily work when you are a sadhu? Or how can you concentrate on your meditation? How you can meditate when you are a king? So Janak said that you come tomorrow in the morning to my court. He said okay. Next day he went to the court of Raja Janak. And Janak ने कहा कि today I have a special program for you. You go by my chariot. My charioteer will come and pick you up. And you see my whole city of Mithila. आप मिथिला घूम कर आइए. The sadhu was very happy. He said okay. But Janak said there is one condition. What is that? The sadhu said, he said कि आपके हाथ में एक कटोरा होगा. There will be a bowl full of milk in your hands. You have to, the condition is that whole day you have to see the city, but even a drop of a milk should not fall from the bowl. बाउल से, कटोरे से दूध का एक छींटा भी नहीं गिरना चाहिए, एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए. अगर गिरा तो आपकी सीट के साथ जहां आप बैठे होंगे, on both the sides there will be two soldiers having swords in their hands, and if any drop comes down they will behead you. वो तुम्हारा सिर काट देंगे. Now he went to see the city. पूरा दिन वो शहर में घूमते रहे. शाम को जब घूम कर आए, पूरा शहर देख लिया, तो राजा जनक ने पूछा कि आप मेरा शहर देखा है? So he said yes. उसने कहा आपको शहर कैसा लगा, शहर में क्या क्या आपको अच्छा लगा? What did you like in the city? What was the best thing? He said, I could not look at it because I was worried about the bowl. मैं तो कटोरे की तरफ देख रहा था. My full concentration was on it. So what I mean to say, that's what I say, कि when you have a goal, the goal keeps you focused. Second thing, allows you to measure your progress. Allows you to measure your progress. बहुत लोग ऐसे होते हैं उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है, वो उसको प्रोग्रेस बना देते हैं. अगेन एक बार की बात है,
राजा भोज जो थे, you might have heard the name of Raja Bhoj. He was a very good archer, you know. And one day somebody told that in a village nearby there is another archer who never misses a shot, जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं है, और वो बिल्कुल एवरी टाइम ही हिट्स द बुल्स आई. चाहे कितना भी बड़ा आर्चर हो, कितना भी बड़ा तीरंदाज हो, कभी ना कभी तो मिस हो ही जाता है. बट इट वॉज टोल्ड टू हिम कि दिस आर्चर नेवर नेवर मिसेस द बुल्स आई. राजा भोज उसको देखने के लिए गए, आई शुड मीट हिम, वो ऐसा कैसे करता. जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा जहाँ वो प्रैक्टिस करता था. सो ही लुक्ड एट द प्लेस. वहाँ बहुत सारे सर्कल्स लगे हुए थे और उसमें एरोज के निशान लगे हुए थे, एग्जैक्टली इन द सेंटर. इतने सारे निशान सेंटर में लगे हुए, मत तो राजा ने सोचा कि इतना बड़ा तीरंदाज तो कोई नहीं हो सकता, आई शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. सो ही सेड टू हिज सोल्जर्स कि आप उसको बुला कर लाइए जो तीरंदाज है, जिसने तेज चलाए. सोल्जर्स उसको ढूंढने के लिए गए. अल्टीमेटली व्हेन दे केम बैक विद द न्यूज़ दैट ही हैज़ रन अवे फ्रॉम द विलेज, जब उसने सुना कि राजा आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि ही वांट्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, ही रन अवे फ्रॉम द विलेज. तो राजा ने गांव वालों से पूछा, व्हाई डिड ही रन अवे. तो गांव वालों ने कहा कि आप तो बेकार उसके पीछे घूम रहे हैं, वो तो बदमाश आदमी है. द किंग सेड, हाउ, ही इज सच अ ग्रेट आर्चर. तो गांव वालों ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आर्चर वार्चर कुछ नहीं है, वो पहले वहाँ से तीर चलाता है, दीवार पर जहाँ लगता है उसके ऊपर सर्कल लगा देता है. सो ही कैनॉट मेजर हिज प्रोग्रेस. एक्चुअली जब आप गोल अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं एंड यू टेक सम स्टेप्स and you look back, so when you set a goal, suppose you have to walk for 5 kilometers every day, so after half an hour if you look at your watch, see and speed, you can know that how much length you have traveled. So I mean to say that goal allows you to measure your progress. Next thing is that keeps you locked in and undistributed. आपको पूरी तरह से बिजी रखता है. if it keeps you totally busy and locked up. You might have heard about Newton. Newton was a very famous scientist. One day Newton was working in his laboratory. When he was working, one of his friend came to meet him. Newton said, you please sit down, I'll finish my work and talk to you. और न्यूटन फिर से बिजी हो गए अपने काम में, and he forgot that his friend is sitting here. After some time, Newton's wife came and she brought her lunch. उनका लंच लेकर आई और आके उन्होंने, शी सॉ दैट न्यूटन इज बिजी, तो उन्होंने वो लंच वहाँ रख दिया. अब वो लंच वहाँ रख दिया जहाँ उनके फ्रेंड बैठे हुए थे. उनके फ्रेंड ने सोचा कि ये लंच मेरे लिए लाया गया, इट इज फॉर मी. सो सिंस न्यूटन वॉज बिजी, ही वॉज नॉट लुकिंग एट हिम, सो ही एट द लंच. लंच खाने के बाद वो आराम से बैठ गए. इन द मीन टाइम न्यूटन फिनिश्ड हिज वर्क. न्यूटन ने जब अपना काम ख़त्म करके पीछे की तरफ देखा, अपने फ्रेंड की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि सब खाली बर्तन टेबल पर रखे हुए हैं. देन ही सेड, ओह, आई हैव टेकन माई लंच, आई फॉरगॉट. So Newton thought that he has eaten the lunch himself. So he was so locked and undisturbed that he forgot that he has not taken his lunch even.
मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आपके गोल्स इतने बिजी रखते हैं कि आपको पूरी तरह से लॉक्ड रखते हैं. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन. जब भी हम लॉन्ग टर्म गोल में होते हैं तो बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, हम लोग सुस्त हो जाते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे. मैं आपको जितनी भी बातें आज बताऊंगा, ऑल द थिंग्स आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ. These are tried and tested formulas. When I was writing my first book, I started saying that yes, I have to write a book, I have to write a book. Then one day, my daughter asked me, Papa, you always say that dream plus date is equal to goal. I said yes. So she said, have you put a date on your dream? I said no. She said, then why don't you do that? Anyway, I wrote in that on one paper that's from 2nd April I'll start writing my book. धीरे धीरे करते करते 2nd April भी आ गया. And in the afternoon, my daughter asked me, you know what date is today? I said yes, today is 2nd April. She said, okay, are you ready? I said yes. So she brought a paper, notebook and pen, and she said, you write even a single word, but start writing today. I wrote Om Shri Guruve Namah, and I really tell you, from that day I started writing, and the book completed. So when you have a certain goal, so you cannot procrastinate. आप सुस्ती नहीं कर सकते हैं. गोल्स का ये आपको फ़ायदा होता है. नेक्स्ट वन इज दैट गिव्स यू मोटिवेशन. व्हेन यू हैव अ गोल, even if you don't achieve, it gives you motivation, it motivates you. Do you know, Edmund Hillary जब एवरेस्ट पर चढ़े तो उससे पहले 5 बार वो फेल हो चुके थे, 4 बार फेल हो चुके थे. 5वीं बार में वो he was successful because people remember the success story, not the failure story. So even 4th time, चौथी बार भी जब जहाँ तक वो पहुँच गए थे, it was the highest peak जहाँ कभी कोई नहीं पहुँचा था. So since it was highest and he has scaled the highest peak till now, so there was a felicitation function in London for Edmund Hillary. जब एडमंड हिलरी वहाँ पहुँचे तो स्टेज के पीछे बैकड्रॉप में बहुत बड़ा एक माउंट एवरेस्ट का फोटो लगाया हुआ था. फेलिसिटेशन के बाद the organizers asked Edmund Hillary to say something about his experiences. Edmund Hillary खड़े हुए. He looked back on Mount Everest and he said, "Oh Mount Everest, you cannot grow bigger than this, but my efforts can. I'll be coming again, and next time he scaled Mount Everest." So what I mean to say, that even if sometimes you are unable to achieve your goals, but still it motivates you. Next thing is काइंड्स ऑफ गोल्स. कई तरह के गोल्स होते हैं. वन इज पर्सनल गोल. पर्सनल गोल में इट कैन बी अबाउट योर पर्सनल थिंग्स. मीन्स इफ यू वांट टू गेन वेट, if you want to
lose weight, if you want to some particular shape of your body or whatever. So you can set a goal that in so many days I have to reduce this much kg, and these many days will be taken by this process. आप जितने भी पर्सनल चीज़ें हैं आपके करियर की हो सकती हैं, आपकी हेल्थ की हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन की हो सकती हैं, जो भी गोल्स आप सेट करना चाहें, दे आर कॉल्ड पर्सनल गोल्स. देन फाइनेंशियल गोल्स. देखिए, everybody needs finance, everybody should have goals, financial goals. When you want to buy something, when you want to buy a car, when you want to buy a house, when you want to how much you want to spend for your children's education, all that. So जब आप उन गोल्स को फिक्स करते हैं कि आफ्टर so many years I need a house, after so many years, after 1 year or 2 years or 3 years I need a car, after that I'll get married and I want this much for my children's education. These are your financial goals. Then, and your vacations, of course, your vacations and all that. Then family goals. What you want to bring for, you want to take your family for vacations, national, domestic vacations, international vacations, and what other members of your family want to achieve. Say something, your wife, your husband, your children, they want to achieve. So these are your family goals. Then social goals. You want to do some social work. How much time you get? This much I want to do for the society. Suppose as I am working with an NGO and I give my spare time to them. जितना टाइम मेरे पास स्पेयर होता है मैं उनको दे देता हूँ. I tell them that this Saturday and Sunday मेरे पास समय रहेगा. So if you want me, sometimes they want my lectures, sometimes they want me physically there. So these are social goals. So social service, sometimes we work for our society, for plantation and all that. They are social goals. Then organizational goals. आपको देखना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, what you have to do in your organization. If you are on a higher level, you have to think so much about your organization, but you have to set goals for your organization. They are called your organizational goals. And then spiritual goals. If you want to go on a pilgrimage or you want to go to some ashram, or you want to go some holy place, or you want to do something, some puja in your house or whatever. They are your spiritual goals. Now, we say there are characteristics of goal. SMART goal, we call it SMART. SMART. This is very, very important. जब आप अपने goal set करते हैं, while you are setting your goals, this SMART is very important. Goal should be specific. Goal should be specific. ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं, suppose you want to buy a car. It should be specific. First thing, you want a car. आपको sedan चाहिए, hatchback चाहिए, SUV चाहिए. Which car you want? Second thing, कौन सा make आपको चाहिए? Which make you want? Third thing, which color you want? From where you want? आपका किस financial
आपका कितना है, मीन्स व्हाट अमाउंट यू वांट टू स्पेंड फॉर इट. सो एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक. देन यू सेट योर गोल्स. इट शुड बी मेजरेबल. कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा, एज आई टोल्ड यू विच कार यू वांट, है ना. आपको घर चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने उसमें रूम्स होने चाहिए, बेडरूम्स कितने होने चाहिए, ड्राइंग रूम कितना बड़ा होना चाहिए, किचन कितना बड़ा होना चाहिए, आपके बाथरूम्स कितने, ऑल इट शुड बी मेजरेबल. थर्ड इज अचीवेबल. इट शुड बी अचीवेबल. जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप ये कहें कि चांद ला के मुझे अपने घर में लगाना है, हो सकता है कि 50-100 साल के बाद ये पॉसिबल हो, बट आई डोंट थिंक विल बी देयर देन, राइट. सो इट शुड बी रेलेवेंट. इट शुड नॉट बी इररेलेवेंट. मैं आई वांट टू किल 10 पाकिस्तानीज. सो दिस इज नॉट, दीज आर नॉट रेलेवेंट गोल्स. इट शुड बी रेलेवेंट. आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना कर सकते हैं, कितना लीगल है. वो भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ इलीगल काम के लिए अपना गोल सेट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो इट शुड बी रेलेवेंट. एंड नेक्स्ट थिंग इज it should be time based, that within this time limit I have to achieve this goal, right. So next is types of goals. There are 3 types of goals. Number 1 is long term goal. Long term goals can be from 5 years and above. Suppose आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद ये आपको अचीव करना है. सो दे विल बी कॉल्ड योर लॉन्ग टर्म गोल्स. देन शॉर्ट टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल से 5 साल के बीच के हो सकते हैं. दैट विद इन दिस पीरियड आई हैव टू अचीव दीज गोल्स. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बाय ए कार. लॉन्ग टर्म गोल्स में आपका बाइंग बंगलो, बाइंग फार्म हाउस, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स में आप यू आर बाइंग ए कार, यू आर बाइंग ए बाइक और समथिंग, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं. या फिर आप यू वांट टू अटेन सम डिग्री, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म गोल, जितने साल की वो डिग्री है, 1, 2, 3 साल वट एवर, तो यू कैन सेट दैट गोल regarding that. And next is immediate goals. Immediate goals is within 1 year. वो आपके हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, या इमीडिएटली आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं. सपोज सम ऑफ योर चाइल्ड गॉट एडमिशन आउटसाइड एंड यू आर प्लानिंग फॉर इट, ऑफ कोर्स, बट now you find that the expenditure is a bit more. So it is your immediate goal that you have to manage some more money for that, right. So these kinds of goals are called long term goals, short term goals and immediate goals. Step to set goals. अब गोल्स सेट कैसे करने हैं आपको. पहली बात, आइडेंटिफाई द गोल्स. आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है, जो मैंने आपसे पहले कहा, सपने देखना. यू हैव टू सी ड्रीम्स, यू हैव टू ड्रीम इट. तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको एक्चुअली व्हाट इज वर्थ वाइल गोल विच यू वांट टू अचीव. देन second thing is set objectives. What you want to achieve from this goal. एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था, तो उसने दूसरा आदमी रास्ते में मिला, तो उसने पूछा कि ये सड़क कहाँ जा रही है. तो उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है. तो उसने कहा मुझे कहीं नहीं जाना. तो उस आदमी ने कहा कि अगर आपको कहीं नहीं जाना तो ये सड़क कहीं भी जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है. सो व्हेन यू हैव टू नॉट गो ऑन दैट रोड, वेयर दैट रोड लीड्स टू, हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस टू यू. सो
हम लोगों को, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं गोल्स को, सो वी शुड सेट ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम दोज गोल्स, राइट. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑब्स्टिकल्स. सी, रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में सब कुछ सीधा सीधा नहीं मिलता. माई फादर यूज्ड टू से दैट इफ यू आर डूइंग सम बिग वर्क, सम बिग गोल यू वांट टू अचीव and everything is going smooth, always think that you are on the wrong road, because when you will try to achieve something big, there will be definitely obstacles. Because ऐसा नहीं है कि जब आप घर से निकलेंगे तो सारी लाइटें ग्रीन होंगी रास्ते में. इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कहीं लाइटें ग्रीन होंगी, कहीं रेड होंगी, बट इट्स ओके. सो बट यू हैव टू लिस्ट ऑब्स्टेकल्स कि ये चीज़ें मेरे रास्ते में आ सकती हैं, एंड हाउ टू सॉल्व देम, उनको मुझे कैसे सॉल्व करना है. सो यू शुड लिस्ट ऑल द ऑब्स्टेकल्स. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई पीपल. एक बात हमेशा ध्यान रखिए दैट यू कैनॉट बी सक्सेसफुल अलोन. कोई भी आदमी दुनिया में अकेले सफल नहीं हो सकता. He needs family members, he needs friends, he needs coaches, he needs different kind of help. अगर कोई आदमी कहता है कि I can be successful alone, no, he cannot. So identify people. आप 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, या फिर उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है. द पीपल विद whom यू आर स्पेंडिंग योर मैक्सिमम टाइम. उनमें से व्हेन यू प्रिपेयर अ लिस्ट, देन आइडेंटिफाई कि कौन से लोग ऐसे हैं विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग योर गोल, एंड विच आर द पीपल हु आर ड्रिफ्टिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल. तो उन लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए हु कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग योर गोल्स. सो मेक ए लिस्ट ऑफ दैट, आइडेंटिफाई दिस. नेक्स्ट वन, लिस्ट स्किल्स. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग को रास्ते में बहुत रुकावटें मिलती हैं, तो हमारी स्किल्स हमारा साथ देती हैं. यू नो, रोल्ड एमंडसन जो थे, ही स्केल्ड द साउथ पोल. जब वो साउथ पोल में, एक्चुअली ही वॉज गोइंग टू नॉर्थ पोल, बट व्हेन ही वॉज सेट फॉर नॉर्थ पोल, यू माइट हैव रेड इट, कि जब वो नॉर्थ पोल के लिए जा रहे थे तो बाद में उनको पता चला कि रॉबर्ट पियरी वहाँ पहले पहुँच गए. हालांकि रॉबर्ट पियरी ने वैसे ही खबर फैला दी थी, रॉबर्ट पियरी वहाँ पहुँचे नहीं थे. दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. लेकिन एमंडसन ने वहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लिया. लेकिन एमंडसन के साथ भी दूसरे जो व्यक्ति जा रहे थे, वो उनका नाम था फाल्कन स्कॉट. फाल्कन स्कॉट जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और ये जो एमंडसन थे ये नॉर्वे के रहने वाले थे. और स्कॉट चाहते थे कि ही शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द साउथ पोल. लेकिन उन्होंने ही डिड नॉट लिस्ट हिज स्किल्स, कि रास्ते में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. उन्होंने बहुत सारे पोनीज अपने साथ ले लिए, जबकि एमंडसन ने स्लेजेस लिए, और उनके पोनीज वहाँ रास्ते में मर गए. और बहुत सारे लोगों को नहीं लिया, खाने की बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिया. लेकिन स्कॉट टुक देम, और स्कॉट के 90% लोग वहाँ मर गए. लेकिन एमंडसन के पास सारी स्किल्स थी. ही हैड ऑल द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्केल अ माउंटेन और टू गो इनटू नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो उनकी अपनी स्किल्स की वजह से, दिस वाज द रीज़न दैट रोल्ड एमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल. इसलिए हमेशा
स्किल्स की लिस्ट बनाइए कि जब आप अपना गोल अचीव करने जाएंगे, व्हाट स्किल्स यू रिक्वायर, एंड व्हेन यू मेक द लिस्ट ऑफ दोज स्किल्स, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट you can achieve it easily. Next one is develop a plan. एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, people don't fail because they plan to fail. People fail because they fail to plan. I repeat, people don't fail because they plan to fail. People fail because they fail to plan. So always develop a plan when you are going to achieve a goal. So you should have a certain plan. If you don't have a plan, then it means you are not going to achieve it. एक बार एक राजा को एक राजस्व अधिकारी की आवश्यकता थी. I tell you a small story. एक राजा थे और उनको एक राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर की आवश्यकता थी. रेवेन्यू ऑफिसर को सेलेक्ट करना था. उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया और जब बहुत सारे लोगों की बहुत सारे टेस्ट हो गए, सो ही फाइनली सेलेक्टेड 2 persons. 2 लोगों को सेलेक्ट किया कि इनमें से कोई मेरा रेवेन्यू ऑफिसर होगा. तो लास्ट टास्क वाज गिवन टू देम. उनको कहा गया कि एक पहाड़ी पर चढ़ना है और पहाड़ी पर चढ़कर वापस आना है. सो अगले दिन सुबह दोनों तैयार होकर आगे. उनमें से एक व्यक्ति ने बहुत जल्दी चढ़ना शुरू किया और दूसरा थोड़ा पीछे रह गया. लोगों ने सोचा कि वो पहले वाला जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी हिल पे पहुंच जाएगा, उस पहाड़ी पे पहुंच जाएगा. दूसरा आदमी धीरे धीरे थोड़ी देर रुकता फिर चलता, थोड़ी देर रुकता फिर चलता. तो कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि द सेकेंड पर्सन was reaching near the first person, and slowly and the people started cheering him up. लोगों ने उनको चेयर करना शुरू किया and he was going slowly. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि they are at an equal stage, वो बराबर पहुंच गए हैं. और उसके बाद कुछ ही देर बाद the second person reached on the hill and the first person was still far behind. जब वो तो दूसरे वाले का सिलेक्शन हो गया, the second one was selected. और जब वो वहाँ आ गए तो the first one asked the second one कि ऐसा कैसे हो गया कि आप you were so much far behind, you are far behind me, और आप कैसे आ गए. तो उन्होंने कहा कि I had a certain plan. Before starting I asked the people here कि मेरा टोटल जो रास्ता है उसकी लंबाई कितनी है. सो आई डिवाइडेड इट इनटू 10 stops. सो एवरी टाइम आई वाज स्टॉपिंग फॉर अ मिनट एंड ब्रीदिंग, long breathing, then I was starting it again. I was taking rest for 1 minute and then starting it. But you were going continuously. तो आप थक गए और थकने के बाद आप धीरे धीरे चलने लगे, and that's why I crossed you. तो he had a certain plan. तो जब भी आपको कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको you should develop a plan. आपको पता है जितने हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन इसीलिए बनाया जाता, हर जगह बिना प्लान के कोई नहीं होता. आप जब घर बनाते हैं तो आप प्लान बनाते हैं, आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो आप एक प्लान बनाते हैं. विदाउट प्लान यू कैन नॉट रीच एनीवेयर. सो नाउ अचीविंग गोल्स, देन लिस्ट द बेनिफिट्स ऑल्सो. लिस्ट द बेनिफिट्स. जब आप इस गोल को अचीव करेंगे तो आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, यू शुड नो ऑल दोज बेनिफिट्स, बिकॉज दैट विल बी ए मोटिवेटर दैट यू आर गोइंग टू गेट दीज बेनिफिट्स. ये फ़ायदे आपको होने वाले हैं जब वो गोल आप अचीव कर लेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन फ़ायदों का भी जिक्र करें और उनको अपने सामने रखें. नाउ achieving goals.
फर्स्ट थिंग इज विजुअलाइज। पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करना सीखिए। नेपोलियन कहता था कि ऑल द वॉर्स आर फॉट इन माइंड। पहले ही यूज टू विजुअलाइज हिमसेल्फ कि कैसे उसको लड़ना है, लड़ते हुए देखता था अपने आप को। आई मीन टू से when you want to achieve a goal, you should visualize it. Everything should be right in front of you. You should have that suppose you want to buy a car, you should see that this is the car, you are sitting in that, and you are driving that car, the color of your choice, everything. तो जो भी चीज़ें हैं उनको विजुअलाइज करना है। जब तक वो विजुअलाइज नहीं होती हैं, देखिए आपको अगर घर बनाना है तो जो नक्शा बनाने वाला होता है, जो उसका प्लान तैयार करता है, आप उसको सब बताते हैं एंड ही विजुअलाइजेस। तो आप विजुअलाइज कीजिए, और विजुअलाइज करना पहली सीढ़ी है किसी गोल को अचीव करने की। सेकंड इज राइट, फील and touch. Always write your goals if you want to achieve it. I tell you that 97% people don't write their goals, and 3% people are the most successful people of the world because only they have written goals. आप देखिए आपके ऑफिस के गोल्स, आपकी गवर्नमेंट के गोल्स, सब they have all written goals. So first of all, write down your goal. Again I tell you that these are all tried and tested methods which I have tried myself. So write, feel and touch. Suppose आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं. Now you have visualized everything, you have defined color, make, everything. Now you go to a showroom. शोरूम में जाइए, अपने पसंद की गाड़ी देखिए, try to sit in that, feel the comfort, drive it, and I tell you, it's going to motivate you. You are going to get it. मैंने जब पहली गाड़ी खरीदी थी तो उससे कुछ दिन पहले I was posted in Goa, so I came to Delhi and उसी समय मेरे छोटे भाई ने अपनी गाड़ी खरीदी थी। सो एक दिन मैंने उस गाड़ी को चला कर देखा, बैठ कर देखा, आई रियली एन्जॉयड इट एंड आई डिसाइडेड टू बाय ए कार एंड विद इन आई थिंक 6 months आई ऑल्सो बॉट ए कार। सो मेरा कहने का मतलब ये है, एक और घटना आपको बताता हूँ जो रिटन गोल्स की होती है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वी यूज़ टू मेक आवर ड्रीम्स लिस्ट। तो हमने एक बार I think in 2000 something, 2000 और 2001, जब होम थिएटर एक नई चीज़ होती थी, इट वॉज ए वेरी न्यू थिंग केम इन मार्केट। होम थिएटर बहुत नई चीज़ होती थी एंड इट वॉज कॉस्टिंग सम 40,000 और समथिंग। सो आई थॉट नाउ आई कैनॉट बाय बिकॉज चिल्ड्रन वर इन प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि इसको हम ड्रीम्स लिस्ट में डाल देते हैं एंड आई पुट इट ऑन 2007 we will buy a home theater. I gave it 7 years time. After that we were I was transferred to Nagpur from Goa. I was transferred to Nagpur. नागपुर में जब हम आए तो वो सारा जो सामान वामान इधर उधर हुआ तो we lost our dream file. 2007 में again we shifted a house and we found that dream file again. By the time both of our children got jobs, और जब वो पहली बार दिवाली पर आए तो they said के we should buy a home theater, and by chance that we got that dream file also, and it was written there that in 2007 we will buy our home theater. आप यकीन मानिए, believe it, I have tried it many times. You just write it down. I don't know from where you will get your dream.
So write, feel and touch. Next one, distribute. See, you distribute your goal in years, years in months, months in weeks, weeks in days and days in hours. And you will see कि आप अपने समय सीमा से पहले ही उसे अचीव कर लेंगे. आई रियली टेल यू, यू विल बी सरप्राइज. इन 2002 I think in 2002 my daughter was in 12th standard. हमने I tried this formula on her और हमने उसका पूरा सिलेबस पूरे एक साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आवर्स में, उसके स्कूल टाइम को निकाल के. एंड आई टेल यू दैट वी वर्कड ऑन द प्लान एंड इट वर्कड इन सच ए वे दैट बाय द टाइम दिसंबर केम, एग्जाम वाज इन मार्च, दिसंबर आते आते उसने 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था. एंड शी आस्क्ड मी, पापा व्हाट शुड आई रीड नाउ? सो दिस इज अ मैजिक, आई टेल यू. नेक्स्ट वन, अवॉइड ड्रीम डिफ्लेटर्स. आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे हु आर ड्रीम डिफ्लेटर्स, जिनके अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ढंग से काम नहीं किया. एंड दे डोंट वांट एंड दे हैव ए क्लियर व्यू दैट नोबडीज ड्रीम कैन बी फुलफिल्ड. सपने तो सपने हैं, आखिर किसने इन्हें साकार किया है. आपने गाना भी सुना होगा, तो लोग गाते हुए फिरते हैं. और आपको व्हेन यू टेल अबाउट योर ड्रीम, वो आपको बताएंगे व्हाई यू कैन नॉट अचीव देम, एंड एक ऐसा एनालिसिस आपको दे देंगे कि आप भी सपना देखना छोड़ देंगे और आपको विश्वास हो जाएगा यस इट कैन नॉट बी अचीव्ड, ये अचीव नहीं हो सकता. इसलिए ऑलवेज अवॉइड दोज ड्रीम डिफ्लेटर. आई कॉल देम ड्रीम डिफ्लेटर्स. वो उनसे बचिए. वो आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. आई डोंट से कि आप उनसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दीजिए, आई डोंट से दैट, बट डोंट बी इन देयर कंपनी. नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपको लगातार करते रहना है. एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक बार एक कुत्ते ने एक खरगोश को देखा. The dog became very happy that it will be a good lunch today. The rabbit was very soft. बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सुंदर सा रैबिट था. तो कुत्ते ने सोचा कि बहुत अच्छा लंच हो जाएगा. The dog started running after the rabbit. Rabbit also started running. कुछ देर के लिए इधर उधर दौड़ते रहे एंड अल्टीमेटली रैबिट अपने बोरों में घुस गया. He went into the burrow. और द डॉग सैट आउटसाइड द बरो. उसके बिल के बाहर बैठ गया कुत्ता. तब रैबिट ने थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला एंड ही सेड, हेलो मिस्टर डॉग, हाउ आर यू? द डॉग सेड, आई एम पजल्ड. द डॉग सेड, सी योर स्टेप्स वर बिगर देन मी, योर स्पीड was faster than me, your body is stronger than me, but even then you could not catch me. He said, yes, that's why I am puzzled. He said, should I tell you why you could not catch me? He said, yes. He said, listen, you were running for your lunch and I was running for my life. So when you start running for your life consistently, you become unstoppable. Nobody can catch you. So consistency is very much important. Next one is put in everything you have. Put in everything you have. Another small story I want to tell you. एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था, डेजर्ट में जा रहा था. जाते जाते उसका पानी ख़त्म हो गया, वाटर बॉटल ख़त्म हो गई, उसका वाटर बैग खाली हो गया. Everything. He had not even a single drop of water. Now it was difficult for him to go ahead. जब
वो बहुत परेशान हो गया। इमीडिएटली ही कुड सी कि सामने एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री एंड अंडर द ट्री देयर इज अ हैंड पंप। जैसे तैसे करके वो उसके पास पहुंच गया। ही वॉज वेरी मच टायर्ड, बहुत थका हुआ था। ही वॉज वेरी मच थर्स्टी, बहुत प्यासा था। बट इवन देन ही रीच देयर। व्हेन ही रीच देयर ही ट्राइड टू पंप द हैंड पंप, बट देयर वॉज नो वाटर। He looked here and there. So he found that there was a bottle full of water. He picked up the bottle, but he saw one slip on the bottle. उसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई थी बॉटल के ऊपर, और उस पर लिखा था, You put this water in the hand pump and the water will ooze up. Now he had two options. दो ऑप्शन थे उसके पास, या तो उस पानी को पी ले या उस पानी को पंप में डाल दे। He took the second option. उसने वो पानी पंप में डाल दिया एंड ही स्टार्टेड पंपिंग, एंड व्हेन ही वाज पंपिंग द वाटर ऊज्ड अप। उसके बाद ही टुक बाथ, वो नहाया। नहाने के बाद उसने अपना बैग भरा, वाटर बैग, अपनी वाटर बॉटल फिलअप की, एंड ही फिल्ड दैट बॉटल अगेन। और जो स्लिप वहाँ लगी हुई थी उसके नीचे ही पुट अनदर स्लिप, और उस पर लिखा, he wrote on that slip, believe it happens. So friends, believe it happens. Whatever I say, it happens. Only thing is, you have to put in everything. Next is one bite at a time. If you, I always ask in my lectures, how you can eat an elephant? How you can eat an elephant? Can you eat an elephant in single bite? No. So small bite. जब जैसा हमने बताया आपको कि आप छोटे छोटे गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, इमीडिएट गोल्स, उनको मिलाकर वो सब आपके एक बड़े गोल हो जाते हैं। सो ऑलवेज डू दैट, one bite at a time. Then mid-term correction. See, जब आप कोई काम करने लगते हैं तो बहुत बार, सपोज आप एक रोड पर कहीं जा रहे हैं और सडनली आपको लगता है, आपको पता लगता है कि द रोड इज ब्लॉक्ड। कल बारिश आई थी, some tree fell down and that road is blocked. What you will do? Will you come back home? No? Okay. You will take some other way? Yes. Right? So sometimes we have to do mid-term corrections, mid-course corrections, है ना? So उसके लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। We should not think कि ये ऑब्स्टेकल आ गई, अब क्या करें, अब तो ये नहीं हो सकता। नो, फाइंड ए वे, आइदर फाइंड ए वे और मेक अ वे। या तो रास्ता ढूंढिए या रास्ता बनाइए, देन ओनली यू कैन रीच देयर, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेपिंग और स्टॉपिंग स्टोन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो आपकी स्टॉपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। बट जिन लोगों में हिम्मत होती है वो उसको स्टेपिंग स्टोन बना लेते हैं। आई टेल यू वन स्टोरी। एक बार एक लड़का था और उसका एक ही वांटेड टू लर्न मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। लेकिन एक दिन एक सडनली ही वॉज 10 years old, इट्स अ ट्रू स्टोरी, ही वॉज 10 years old, और एक एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया, लेफ्ट हैंड उसका कट गया। बट स्टिल ही वांटेड टू लर्न मार्शल आर्ट। तो वो मार्शल आर्ट के एक टीचर के पास गया, जापान की बात है, वहाँ गया और उस टीचर ने कहा कि यस, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड देन आई विल टीच यू।
वो टीचर उसको लगातार एक ही मूव सिखाते रहे. He asked the teacher, okay, will you teach me only one move? He said one move is sufficient for you. तो वो एक ही मूव पे काम करता रहा. After some time, there was a tournament. He went for that. First round he won easily. Second round he won easily. Third round with a bit difficulty he won. Ultimately he reached in final round. जब वो फाइनल राउंड में पहुंच गया तो उसका जो ओपोनेंट था वो उससे बहुत बड़ा जाइंट था. सो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं है. सो देयर वाज अ मोमेंट व्हेन द रेफरी इवन फेल्ट कि ये जो इसका अपोनेंट है वो इसको मार देगा. सो ही ट्राइड टू स्टॉप द कंपटीशन, बट देन हिज टीचर केम. ही सेड नो, लेट हिम फाइट. फाइट दोबारा शुरू हुई और कुछ ही मिनट के बाद दिस बॉय won the match. After that, when he won the belt of championship, when they were coming back, तो उसने he asked his teacher, उसने अपने टीचर से पूछा कि मैं कैसे जीत गया, वो तो इतना बड़ा था. तो उसने कहा कि today I will tell you why I taught you only one move. मैंने आपसे कहा कि एक ही मूव को मास्टरी करते जाओ, बिकॉज यू डोंट हैव योर लेफ्ट हैंड. तो ये मूव जो मैंने आपको सिखाया है, विच आई टॉट यू, इस मूव को का मुकाबला करने के लिए द अपोनेंट शुड कैच योर लेफ्ट हैंड, बट यू डोंट हैव योर लेफ्ट हैंड, सो योर अपोनेंट कैन नॉट कैच योर लेफ्ट हैंड. वो आपका, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका विरोधी आपका बायां हाथ पकड़े और वो उसको नीचे गिराए, लेकिन वो आपका बायां हाथ पकड़ नहीं सकता है. इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसी मूव को मास्टर करते जाइए. दैट्स व्हाई यू वॉन द बेल्ट. सो इसलिए अपनी कमज़ोरियों को कभी आपके साथ किसी के साथ, दीपा मलिक हैं और कितने ही पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, आप सबको जानते होंगे, आपने बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, राइट. सो दे they converted their stopping stones into their stepping stones, right? So don't lose heart and make your stopping stones into your stepping stones. Next one is unlocking doors, reach your goal. एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि माइकल एंजेलो ने जब डेविड का स्टैचू बनाया तो लियोनार्डो दा विंची ने कहा कि मिस्टर एंजेलो, यू हैव मर्डर्ड आर्ट. ही सेड हाउ? ही सेड बिकॉज nobody can make David better than this, right? So people asked him how you could make David so beautiful. You know what did Angelo said? He said, I don't know what I did. David was in the stone and I just removed the spare stone. मैंने फालतू का पत्थर हटा दिया. मैं फालतू का पत्थर हटाता रहा और डेविड इसमें से निकलता रहा. So that's how. So you have to unlock doors to reach your goal. And last one is practice, practice and practice. You might have heard the name of Mr. Kahn, who was a goalkeeper of Germany, जिसको वर्ल्ड कप फुटबॉल में गोल्डन बूट मिला था. जिस बार उनको गोल्डन बूट मिला, उससे पहले वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल में he decided that next time I will win the golden boot. And golden boot is the highest prize in World Cup football. So you will be surprised कि वो I was reading some
राइटिंग्स ऑफ हिज फादर, उसके फादर ने लिखा है कि ही यूज़ टू गो एट द ग्राउंड एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अपने जो दूसरे टीममेट्स थे, ही यूज़ टू कॉल देम टू द ग्राउंड एंड ही यूज़ टू आस्क देम टू हिट गोल्स बिकॉज ही वॉज ए गोल कीपर, तो ही वॉन्टेड टू सेव गोल्स. और 4 घंटे कंटिन्यूस वो प्रैक्टिस करता रहता था. वो जब घर आता था, जब उसके घुटनों से खून निकलना शुरू हो जाता था. एवरी डे इट वॉज ए प्रैक्टिस एंड ही डिड इट 4 hours पर डे for next 4 years without fail, and that's why he won the golden boot. So I think it is 4:29 and we have to finish it at 4:30. So I am sure you might have enjoyed it. और आपने इतने धैर्य से मुझे सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you very much. Madam, over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very